Hi, I'm Sneha from Poonj. Hi, good evening. Good afternoon. Good afternoon. Okay, this will be an audio call or a video call? We'd like to do a video call if that's okay with all of you, so we can take a recording of it for a video purpose or something later. Is WhatsApp joining? Yeah, should be coming. I'll text them. So, how are you people? How is it going on? Joined? It's going well. What about you? Are you doing online classes also? Yeah. We're gonna have our online exams pretty soon. The internet connection today is bad. Hello. Hi. Are we ready to begin? Are we waiting on anyone? We are waiting for more team members. Okay, another one join. There are 3 team members who are the main speakers. Okay. Mr. Imran is there. Yep. Shivji is there. I'm just waiting for Arpita to join. Is anyone left? Yes, to Okay. As they send the request, I'll add them. Hello. Hello. No, WhatsApp not Yes. does. They're on the phone. Hello, Sneha. Shivji. Hi. Hello, Shivji. Hello. कैसी हैं Hi, आप? Arpita. Hi. ऑफिस में हेलो हेलो मेरी बात आ रही है स्नेहा? हेलो हाँ आ हाँ रही है आपकी आवाज। आ रहे हो। अच्छा अच्छा So, Nilima has also joined from our team. Hi. Hi everyone. Hello. Hi. Hey. Shah, Arnav, Roshan, Vasif. So, I'm Sneha, Nilima. We were coordinating with you, and these 3 people, from Mr. Imran, Mr. Shivji, and Arpita. She's a friend, so Mr. नहीं निकलता है या Mr. निकलता है. So these 3, they would be answering all your questions. They have been with you for quite mostly for more than 10 years, and they have been Shivji has been working with field directly on ground in Bihar.
Arpita has been working with larger stakeholders and our partners, and to, how she has been sitting at one place in Kolkata. She has been able to channelize a lot of working with a lot of partners across in West Bengal. And Mr. Imran has actually he has been looking after the processing unit of Poonch for the last I think more than 15 years. And he actually looks into the larger transportation of material from one place to another, handling material, handling people, taking care of the taking care of the mechanism of and the logistics of how the material should reach the segregation. So a lot goes into that. So they will be a better person to speak. So you people can start. So first of all, आपका ये नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं। हम 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और देहाती मजदूरों की मदद करने के लिए हमने हम सहायक एक कैंपेन शुरू किया है। कैंपेन के अंदर हम इनके बारे में और जानकारी देना चाहते हैं जो उनको लगता है कि उनके साथ क्या बीत रही है, और इसके साथ गूंज की भी मदद करना चाहते हैं थोड़ा फंड्स रेज करने में, तो ताकि उनको मदद दे सके। तो आपसे आपके पहले बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए ये वक्त निकाल सके, और हम इसके तो गूंज इन देहाती मजदूरों को कैसे सहायता कर रहे हैं? हेलो या अच्छा, कैन आई स्टार्ट? या तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऑर्गेनाइज किया, और हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं और जो स्टूडेंट हैं, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। हम तीनों जो भी पैनलिस्ट हैं, शिवजी और अर्पिता, वो इसमें ऐड करेंगे जरूर, क्योंकि ये जो लेबर का मसला है या जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, ये सिर्फ शहर का मसला नहीं है, ये शहर से गांव तक का, ये पूरे भारत का, ये पूरे इंडिया का इस तरह का मसला है। जहां तक अभी हालात की बात है वो बहुत ही नाजुक है, और या 5 बजे रोड पे चले जाएं, मेन रोड पर, अपने किसी भी हाईवे रोड पर, और वहां सिर्फ आधा 1 घंटा रुकें और आपको सारी हकीकत सामने आ जाएगी। मतलब किसी भी न्यूज चैनल की जरूरत नहीं है, किसी भी मीडिया क्लिप की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर से थोड़ा बाहर निकल सकते हैं तो 4 बजे 5 बजे सुबह निकलिए और हाईवे पर देखिए, और बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, ये मसला ये नहीं है कि सिर्फ ये एक स्टेट का मसला है कि या महाराष्ट्र से लोग माइग्रेट हो रहे हैं या सिर्फ दिल्ली से माइग्रेट हो रहे हैं। नो डाउट ये कैपिटल्स हैं स्टेट्स के या कंट्री के, दिल्ली जैसे कैपिटल है तो यहाँ से लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन या गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ से ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोग जो अगर मान लीजिए कोई एमपी में काम कर रहा है तो वो पैदल निकल गया है महाराष्ट्र के लिए। तो सिर्फ ये मसला नहीं कि बड़े सिटीज से ही लोग निकल रहे हैं। बेसिक मसला ये है कि 2 रोटी की जब वो सिक्योरिटी नहीं है 2 रोटी की, तो लोग अब वो पेशेंस निकल गया है, अब वो रोड पे आ गए, और वो किसी भी हालत में उनको कुछ भी नहीं पता है कि वो 700-800 किलोमीटर कैसे पैदल चलेंगे। उनको कुछ नहीं पता कि उनका छोटा बच्चा उनके साथ क्या 700-800 किलोमीटर का सफर तय कर पाएगा कि नहीं, उनकी बीवी उनके साथ अब रहेगी कि नहीं रहेगी। ये जो भी बेसिक बुनियादी सवाल है, उस सवाल से उठ कर लोग निकल गए। इवन की रेलवे ट्रैक पर अभी जो डेथ हुई है इसकी, और इतने मीडिया हाईलाइट होने के बावजूद, अगर हम दिल्ली की बात करें तो ओखला के साइड में जो रेलवे ट्रैक पड़ता है, लगभग 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक में 20 से 25 हजार लोग रेलवे ट्रैक पर रोज सफर कर रहे हैं। ये रोज की हकीकत है। अब सवाल ये होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आल्दो ये हमारे कुलीग भी बताएंगे, चूंकि वो रूरल और अर्बन दोनों देखा, से रूरल देख रहे हैं। लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो गुंज की बात करें तो हम फैमिली किट, जो राशन फैमिली किट है वो तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा जो किचन चल रही है,
तो जिन लोग किचन के साथ हमारा टाइप है या जो वॉलंटियर्स किचन चला रहे हैं उनमें हम राशन बड़ी मात्रा में दे रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को जितना पॉसिबल हो सके वो मिले। और इवन के दिल्ली में हमने अभी आज से ही अपनी भी किचन स्टार्ट की है और जो छोटी छोटी चीज़ों को हमने ख्याल रखने की कोशिश की है, जैसे स्लीपर है, चप्पलें हैं जिनके पास नहीं है या है भी तो वो मुश्किल से 20-25 किलोमीटर में खत्म हो गया, इतनी हिट में वो चल रहा है, तो जैसे स्लीपर है या उनके लिए चना पूरी का इंतजाम है, पानी की बोतल का इंतजाम है, कुछ सप्लीमेंट है, ये अब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर नहीं, लेकिन अभी जो हालात है उन हालात को देखते हुए जो हम सपोर्ट कर सकते हैं हम भी उसके बारे में बात करें। मास्क है या ये सारी जो चीजें हैं वो करें। तो हालात बहुत नाजुक है और ये बढ़ते जा रहा है और ये बढ़ेगा क्योंकि लॉकडाउन होपफुली और भी बढ़ेगा। तो जिसका पेशेंस 10 दिन का था वो 10 दिन तक रुका, जिसका पेशेंस 20 दिन का था वो 20 दिन तक रुका, लेकिन अब वो संख्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ हम एक छोटी सी स्टोरी शेयर करेंगे और जो हमारी कुलीग के साथ हुई हैदराबाद में। हैदराबाद में परितोष है हमारे साथ, हमारे कुलीग हैं। तो वो सुबह उठे अपने घर के सामने और उनके घर के सामने थोड़ी दूर पर हाईवे है, तो कुछ 20-25 मजदूर जो लेबर थे वो महाराष्ट्र जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि बस जा रहे हैं। तो देख कि इतने दूर सफर करेंगे तो क्या खाएंगे कुछ नहीं पता, कि कोई बीमार हो जाए तो कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हम घर तक पहुंचेंगे तो शायद हम जिंदा रहें, शायद हमें 2 रोटी का इंतजाम हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप रात में रुक जाइए, हमारे घर के ऊपर छत पर रुक जाइए, रात में आराम कर लीजिए, फिर सुबह निकल जाइएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको कम से कम 1 महीने का फूड या 2 महीने का फूड की सिक्योरिटी हम दे रहे हैं क्योंकि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो लोग रात में रुके और इस नियत से रुके कि हम सुबह निकल के चले जाएंगे। लेकिन सुबह वो लोग उठे और उनको इस बात का यकीन हुआ कि ये जो शख्स बोल रहा है वो सच बोल रहा है, हमें 20 दिन का या 1 से 1.5 महीने का खाना ये प्रोवाइड कर देगा। तो वो जो 20 किलोमीटर चल के आए थे वो कॉन्टेक्ट नंबर लेके 20 किलोमीटर अपने घर की तरफ या जहाँ पे वो रेंट पर रहते थे वहां पे चलेगा। वो इसलिए क्योंकि उनको जस्ट बिकॉज कि 1 महीने से या 1.5 महीने की फूड की सिक्योरिटी मिल गई। नहीं तो कोई भी इंसान जान पर खेल करके 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 600 किलोमीटर नहीं चल सकता। हम लोग बोल रहे हैं ये लेबर क्लास है, क्या इसमें मतलब डायबिटीज के पेशेंट नहीं है या मतलब कार्डियोलॉजी के पेशेंट नहीं है, हर तरह के पेशेंट हैं, अस्थमेटिक पेशेंट है। लेकिन चूंकि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, भूख का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो वो निकलते जा रहा है। रूरल पार्ट में जो हमारे कुलिंग है वो सेट करें कि जो माइग्रेंट्स लेबर रूरल में पहुंच चुके हैं, गांव में पहुंच गए हैं, तो उनके लिए हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो शिव जी और अर्पिता आप लोग ऐड करें। हेलो एवरीवन। बेसिकली गांव में अभी बिहार में तो ऐसा है कि मैक्सिमम लेबर माइग्रेट करते हैं, मैक्सिमम लोग माइग्रेट करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो। अभी जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं सब क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं और सारे जगहों पे लेबर आना स्टार्ट हो गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएँ हो रही हैं। लेकिन बीच में जैसे वो लोग आ रहे हैं और उनको रास्ते में कहीं कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जाके वहाँ पे उनको कोई खाना खिला दे, कुछ उनको कोई राहत सामग्री दे दे। बहुत सारे लेबर ऐसे हैं जो लगातार चलते आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। तो उनको गूंज के तरफ से, मतलब हम जहाँ तक गूंज की बात है, हम लोगों ने जगह जगह पे कहीं कहीं पे खाने के कुछ पैकेट्स की व्यवस्था करी है जहाँ भी संभव हो पा रहा है, या जहाँ पे हमारे लोग हैं, माना कोई गूंज के वॉलंटियर हैं, उनके माध्यम से उनको चूड़ा या गुड़ ऐसे या पानी, इन सब की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं जगह जगह जी। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगी एक्चुअली। यहाँ पे जो एक्चुअली ऑडियंस एक्चुअली हमारे पूरे अभी इंडिया में 2 टाइप का होता है, एक तो विजिबल ऑडियंस और एक इनविजिबल ऑडियंस।
विजिबल जो है, हमें लगता है कि डेली वेज अर्नर्स जो माइग्रेंट है वो बहुत ज्यादा विजिबल है. डेफिनेटली वी शुड वर्क विद देम एंड वी हैव बीन वर्किंग विद देम फॉर द लास्ट 2 months. कुछ इनविजिबल ऑडियंस भी है हमारे पूरे भारत में, जैसे जो प्राइवेट ट्यूटर है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक्चुअली एवरीवन इज इन नीड राइट नाउ. मीडिया जो कवरेज कर रहे हैं वो नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं अपार्ट फ्रॉम रूरल एंड अर्बन, लाइक जो टैक्सी ड्राइवर्स है. बस पिछले 2 महीने से बंद है. जो कंडक्टर एंड ड्राइवर है बसेस का, जितने स्टेट है हमारे यहाँ पे. फिर अभी जो आपका रिक्शा पुलर्स, टोटो या जो भी ड्राइवर्स है, फिर आपका सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर्स, बहुत सारे ऐसे होम है हमारे पूरे भारत में जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए है, ओल्ड एज होम है, वहाँ पे भी खाने का सामान नहीं है. और जो अभी जो हमें दिखाई दे रहे काम, जब हम लोग स्टार्ट किया कि ऐसे भी लोग हैं जो प्राइवेट ट्यूशन ही करते थे, जो रेंट पे रहते थे शहर में, उसके पास रेंट देने के लिए भी पैसा नहीं है. तो वी आर टारगेटिंग देम टू प्रोवाइड फूड. और एक जगह हम लोग इमीडिएट नीड पे भी काम कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म नीड पे भी काम कर रहे हैं. इमीडिएट नीड पे अभी हम लोग वी आर गिविंग ड्राई रेशन, ठीक है, उसके साथ जो भी बेसिक नेसेसिटीज है, बेसिक कमोडिटी वी आर प्रोवाइडिंग. लॉन्ग टर्म में जो हम लोग कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे भी काम करना स्टार्ट किया है अभी गूंज में, थ्रू आवर पार्टनर्स एंड डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है. क्योंकि जब भी लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, गूंज बेसिकली पूरे पैन इंडिया में एक तरह के डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में करते हैं, और बहुत सारे स्टेट में थ्रू डिफरेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं. जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, हमारे लिए पॉसिबल नहीं था इंटीरियर में जाके सामान पहुंचाना. तब जो हमारा पार्टनरशिप है वो बहुत काम आया था, क्योंकि हमने लोकल परचेज किया, लोकली लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया सामान. इट वाज इम्पोर्टेंट. उसके बाद जो किया कि अभी हम लोग लोकल फार्मर से, जो लोग सेल नहीं कर पा रहे अपना सामान कुछ भी, वी आर परचेजिंग फ्रॉम देम एंड वहां से हम लोग लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारे लैंड आइडेंटिफाई किए हैं, बहुत सारे मास्क प्रोडक्शन जो भी है हमारा, हमने क्या किया, एक तो ऑब्वियसली हमारे गूंज का जो भी सेंटर है हमने वहाँ पे स्टार्ट किया. बाकी ऐसे इंटीरियर गांव है जहाँ पे शायद लोग एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे एंड दे वोंट बी एबल टू बाय फ्रॉम द शॉप, पॉसिबल ही नहीं है. तो हमने वहाँ पे लोकल मास प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं उनका जो इनकम है वो जनरेट करने के लिए, ठीक है. और ये जो अभी हम लोग फार्मिंग पे भी काम स्टार्ट कर, कम्युनिटी किचन गार्डन फार्मिंग, बच्चों का आंगनवाड़ी में अभी हम लोग वी हैव स्टार्टेड वर्किंग. जी, तो अर्पिता मैम, आपने ये लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बात की है, तो गूंज की तरह से या आपकी तरह से आपको क्या लगता है, जब अगर ये लॉकडाउन उठे भी और ये लॉकडाउन बंद हो जाए, ये जो दिहाड़ी मजदूर है उन पे ये प्रॉब्लम्स कब तक बीतेगी? अगर जब ये उठ जाए तभी बीतेगी उन पे, क्योंकि इकोनॉमी तो नीचे रहेगी देश की. तो देखिए, इसका कोई अभी कोई डेटा नहीं हो सकता है, या अभी ये कोई सोल्यूशन के तौर पर नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक खुलेगा ये गवर्नमेंट को भी नहीं पता है, क्योंकि हालात जिस तरीके से नाजुक हो रहे हैं, ये लॉकडाउन बढ़ेगा, और जिस तरीके से बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम होगी, मतलब फाइनेंशियल तौर पर. ऑब्वियसली मतलब ये डिमांड हो सकती है, होगी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरफ से केस निकल रहे हैं. लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि किस लेवल पर जाएगा, या जो दिहाड़ी मजदूर थे उनको कितना सफर करना पड़ेगा, तो उसका भी कोई एंड नहीं है. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक बात हमको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं. वो जा रहे हैं अपने गांव, अपने घर. वो उसी जगह से निकले थे जहाँ को उनको फूड की सिक्योरिटी पूरी तरीके से या सोशल सपोर्ट पूरी तरीके से नहीं था. वो एक बेहतर जिंदगी में या अपने बच्चों की बेहतर जिंदगी बनाने के लिए वो उन्हीं गांव से निकलकर शहर में आए थे. लेकिन उन्हीं शहर को बनाने में उन्हीं शहर के लोगों ने उनको छोड़ दिया. आप ये सोचिए कि एक कंपनी में अगर 2000-2500 लोग रहते हैं और लोगों ने 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, 25-25 साल तक काम किया, और उस कंपनी ने उनको 2 महीने की फूड सिक्योरिटी नहीं दे पाई. क्या वो 2 साल या 25 साल से क्या कंपनी ने उनसे कमाया नहीं होगा, या इतने बेनिफिट नहीं कमाया हो कि उसे 2 महीने का राशन दे सके? लेकिन इसी बड़े शहर की कंपनियों ने उसे छोड़ दिया. ये सच है कि जो लोग रोड पे हैं वो कहीं ना कहीं तो काम कर रहे थे. इवन कि हमको जहां तक उम्मीद है कि 65 से 70% लोग कंपनी में ही काम कर रहे थे.
रिक्शा पुलर और जितने लोगों को वो 35% में ही आ जाएंगे। तो जो 65% लोग थे अगर किसी कंपनी में काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे काम कर रहे थे, लेकिन वो किसी मैन्युफैक्चरिंग उस यूनिट में ही तो थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर से लेकर और उसके ऊपर जो जितनी भी कंपनियां थी और इस देश की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, नामी गिरामी कंपनियां, छोटी कंपनियां हो, उनको छोड़ दिया। अब वो उनको ये इस बात का 20 दिन या 1 महीने में यकीन हो गया कि अब वो सेफ नहीं है, तो शायद हम घर पहुंच जाए तो हम सेफ हो जाएं या कम से कम हम जिंदा रहें। अब जब वो घर पे गया है वो, तो वहां पे आने वालों की संख्या जो नंबर से वो कई लाखों में है। तो अगर एक जमीन का टुकड़ा था भी जिसमें 2 लोग खेती कर रहे थे तो 2 लोग को पूरा नहीं हो पा रहा था, तो अब अगर उसमें 15 लोग, 10 लोग या 8 लोग भी खेती करेंगे तो उसमें कितना आपस में डिवाइड होगा। यानी कि ये कंफर्म है कि उनके पास रूरल पार्ट में जाने का भी बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं है, पर जस्ट बिकॉज भी शहर में लोगों ने सिक्योरिटी नहीं दिया तो वो पहुंच रहे हैं। हमें जिम्मेदारी से ये जरूर करना चाहिए एज ए ऑर्गेनाइजेशन और एज ए पर्सन कि अगर हम रूरल पार्ट में उनके लिए थोड़ा सा सेफ्टी और सिक्योरिटी दे सकें, अगर हम लघु उद्योग में उन्हें इन्वॉल्व कर सके, हम वहां पर उनके लिए कुछ ऐसा फूड का सिस्टम करें कि कम से कम वो मतलब फूड और सिक्योरिटी रहे, उनके बच्चों का एडमिशन के बारे में सोचे, गवर्नमेंट स्कूल को थोड़ा बेहतर करने के बारे में सोचे, या गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू मतलब उनकी जो लाइफ है अगर हम उसको सस्टेन कर सकें थोड़ा सा रूरल पार्ट में, तो शायद अर्बन में वो प्रेशर भी ना रहे और हम लोगों को ये समझ में आ जाए कि उनकी अहमियत क्या थी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, अभी इसका जवाब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास नहीं है। हम एज ऑर्गेनाइजेशन या हम और आप मिलकर के हम जितना कर सकते हैं, जिस लेवल पर कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। जी, आप इमरान जी आप सलाह दे रहे थे कि हम कैसे मदद कर सके, और अगर देखें तो जो 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 जैसे हम युवाएं हैं, हम इसलिए हमने हम सहायक शुरू किया क्योंकि हम सोचे कि जानकारी देने में और फंड्स रेज करके हम मदद कर सके। तो आपकी क्या सलाह है देश के युवाओं को कि वो ये जो प्रॉब्लम है उसमें मदद कैसे कर सके? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टर्स है, 2-3 मतलब 2-3 तरह का ये एक तरह से लाइन बन चुकी है। हम लोग जो आज काम कर पा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, जो अगर हम दिल्ली की बात करें तो लगभग 12-15 हज़ार फैमिली किट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं। और अगर आप हमारा डेटा देखेंगे तो कोई 8 लाख टन में सामान मतलब 8 लाख समथिंग कुछ ग्रॉसरी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे देश में। तो इसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल है पूरे देश में कि इन हालत में आप ये सोचिए कि एक बहुत ही फैमिली, हम आपको बात कर रहे हैं, एक फैमिली में इकलौता लड़का है जिसकी बहुत अहमियत होती है, बहुत उसको सेफ रखा जाता है, उसको बहुत मतलब सिक्योरिटी दी जाती है कि भाई इकलौता लड़का है, उसको बहुत नाजुक उससे पाला जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी फैमिली के वॉलंटियर्स हैं जो घर के इकलौते लड़के हैं जिनके पेरेंट्स भी बीमार हैं, लेकिन वो रोड पर के आकर काम कर रहे हैं और बहुत जज्बे के साथ कर रहे हैं। एज ए ऑर्गेनाइजेशन ऐसे युवाओं या ऐसे वॉलंटियर्स की ही ताकत से हम लोग इस लेवल पे काम कर पा रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर इंसान रोड पर उतर जाए तभी काम होगा, क्योंकि बहुत सारे बाउंडेशंस भी हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी का भी मसला है कि आप घर पे रहें और बहुत चीज फॉलो करें, और बहुत सारे पेरेंट्स आपको परमिशन देंगे, बहुत सारी चीजें परमिशन नहीं भी देंगे। लेकिन हम हर एक लेवल पर, जैसे आपकी वो थॉट थी कि आप लोगों ने मिलकर वो शुरू किया, आप लोगों की थॉट थी कि हम लोग मिलकर के कुछ ऐसा करें, कुछ फंड रेजिंग करें। आप इस फंड रेजिंग को आगे तक बढ़ा सकते हैं, आप गूंज के कॉन्सेप्ट को आगे तक बढ़ा सकते हैं। आप अगर मान लीजिए कि सेफ जोन में भी काम करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट मिलकर कहें कि हम अपने घर का राशन देंगे या हम अपने पेरेंट्स से राशन कंट्रीब्यूट कराएंगे, और आप घर से बाहर मत लीजिए, इकट्ठा परचेज कीजिए या इकट्ठा उसको कीजिए और पोर्टर के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर दीजिए एनजीओस को, या जहाँ पर किचन चल रही है वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, और आप घर बैठे हुए बहुत लोगों को खाना खिला सकते हैं, क्योंकि वो आपकी नीयत है। दूसरा, आप घर में बैठे फंड रेजिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वेबसाइट बनाई है या केटो है या ऐसे कई वेबसाइट्स हैं, उस पर जाकर के आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप फंड रेजिंग पेज बना सकते हैं और फंड रेज कर सकते हैं, मतलब उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा ये है कि लोगों को ये मोटिवेट करना, जागरूक करना कि यार हमें कुछ करना है। तो जो आपके थॉट थे और आपने गुंज के साथ एक टाइप करने की कोशिश की, तो इसी तरीके से लोगों को अवेयर करना कि भाई ये जरूरी नहीं कि गुंज के ही साथ करें, आप अपने अगर हम ये भी एक मतलब सोचे कि हमारे घर अगर वो 4 लोग आते थे,
वो जो काम करने वाली हैं, जो मेड थी या जो गार्ड थे, कहीं वो तो नहीं हमारा शहर छोड़ के जा रहा है। हम वो 5 लोग की भी अगर सेफ्टी सिक्योरिटी ले लें तो कम से कम एक बहुत सारा महकमा हम या बहुत सारी जो नंबर्स हैं वो लेबर्स की उसको कम कर सकता है अगर हर फैमिली 4 से 5 लोग की सेफ्टी ले ले तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। शिव जी, अर्पिता कुछ ऐड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। सवाल था। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ जी, एक आखिरी सवाल था जो इमरान जी आपने शुरुआत में ये बोला था कि अगर आपको कोई न्यूज़ चैनल की ज़रूरत नहीं है ये देखने के लिए कि ये जो दिहाड़ी मजदूर है उन पे क्या बीत रही है, अगर आप बाहर जाओगे 5 बजे 6 बजे आपको खुद दिख जाएगा। जो हम जो ये जानकारी फैलाना चाहते थे वो इसके बारे में था कि ये दिहाड़ी मजदूर पे क्या बीत रही है, जो अगर आप न्यूज़ पे देखते हो वो आपको बता रहे हैं कि इतने लोग इधर से इधर जा रहे हैं, ये माइग्रेट कर रहे हैं, जो उन पे बीत रही है वो हमको ज़्यादा पता नहीं। तो अगर आप लोग को कोई इंसिडेंट पता हो जो आप बता सके कि जो आपको बहुत पर्सनल लगे ये इंसिडेंट के बारे में, जो प्रॉब्लम चल रही है इसके बारे में कोई पर्सनल इंसिडेंट लगे ये दिहाड़ी मजदूरों के बारे में, अगर आप वो हमारे साथ शेयर कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर अर्पिता और शिव जी भी इसमें अभी शिव जी भी ऐड करेंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से बोल दूं अभी शिव जी ऐड करेंगे। तो देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने आपको एक केस शुरू में ही बताया कि हैदराबाद का, कि हैदराबाद में 20 किलोमीटर लोग निकल गए थे अपने घर के लिए, लेकिन वो रात में रुके और ये सोचे कि हमें 1 महीने का राशन मिल जाएगा और देन कम बैक। तो ये बहुत हार्ट टचिंग है कि सिर्फ हमने 1 महीने की फूड सिक्योरिटी ली। ऐसा नहीं कि हमने ये कहा कि हम आपका घर बनाएंगे या हम आपके बच्चों का फीस देंगे या कुछ भी करेंगे, ऐसा कुछ भी हमने उनको नहीं दिया। हमने सिर्फ 1 महीने की फूड सिक्योरिटी दी, तो वो 20 किलोमीटर वापस घर चले गए, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम लोग रोड पे जो देख रहे हैं, एक वो तबका है जो बिल्कुल जिसके पास 2 झोले में सामान था 5 साल पहले और आज भी। एक वो तबका है जो 10 साल तक मेहनत कर अपने घर को बहुत कुछ बनाया, अपने घर में एक टीवी खरीदा छोटा सा, अपने घर में एक छोटा सा फ्रिज खरीदा, एक बेड खरीदा, लेकिन आज उसके पास खाने के लिए नहीं है। और वो चूंकि वो कुछ लेके नहीं जा सकता है, वो बेच नहीं सकता है, वो आज भी वो 2 झोले में अपना मतलब जो खाने का कुछ सामान है, बिस्किट विस्किट है और कपड़ा है या कुछ है या एक चप्पल है, वो आज भी फिर वही 2 झोले में जो जिस 2 झोले में वो गांव से आया था, फिर उसी 2 झोले में वो सब कुछ छोड़ करके निकल रहा। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि रेंट पे थे और 1 महीने के रेंट तो किसी तरीके से लैंडलॉर्ड ने माफ कर दिया, पर दूसरे महीने का जो लैंडलॉर्ड ने माफ नहीं किया, तो अगर उनके पास 10 दिन का खाना था भी तो वो चुपचाप बिना बताए हुए, मतलब शाम को मुलाकात हुई है और चुपचाप एक ग्रुप बनाए और सुबह 4 बजे निकल गए सब कुछ छोड़कर, जो उन्होंने 10 साल में एक छोटी कटोरी से लेकर के एक छोटी टीवी से लेकर सब कुछ उन्होंने बनाया और सब कुछ छोड़ करके लैंडलॉर्ड को दे करके छोड़ करके, चूंकि जस्ट बिकॉज की किराया नहीं दे सकते थे, और सुबह 4 बजे निकल गए। तो अगर आपका सब कुछ 1-2 झोले में सिमट जाए और ये भी नहीं पता कि रोड पर हम जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी और आगे, तो इससे बढ़कर मेरे ख्याल से शायद एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ। केशव जी, आप शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज। हाँ जी। हाँ, और शिव जी मैं चाहूंगी ना वो फार्मर वाला भी आप बताएं थोड़ा सा। सॉरी, एक्चुअली ये वाकया जो है मेरे साथ ही हुआ था पिछले हफ्ते ही। हमने हम लोग इसे शेयर कर चुके हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। रात में मेरे पास करीब 11 बजे फ़ोन आया एक लोकल थाने के जो दारोगा हैं उनका, क्योंकि जहाँ मैं था बक्सर में वो यूपी और बिहार का बॉर्डर है। तो रात में 11 बजे के आसपास जो थानेदार है उन्होंने फ़ोन किया कि करीब 31 लेबर हैं, मजदूर हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और उनके साथ बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और जो प्रशासन है उन्होंने भी कोई व्यवस्था नहीं की थी। और चूँकि उन्हें वो गाज़ियाबाद से आए थे
पैदल चलते हुए, और उनको हजारीबाग जाना था, जो जहाँ पे वो थे बक्सर में, वहाँ से करीब 300 किलोमीटर उनको और आगे जाना था। लेकिन उस रात में उनके पास न कोई खाने का सामान था, ना पीने का पानी था, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने फ़ोन किया दरोगा जी ने कि आप देखिए कुछ व्यवस्था हो जाए, क्योंकि रात में तो दुकानें वगैरह सब बंद रहती हैं, ऐसे भी दुकानें नहीं खुल रही हैं। लेकिन किसी तरह से हम लोगों ने, एक हमारे जो मित्र हैं उनसे 5-6 किलोमीटर वो आगे रहते हैं, उनसे बात करके रात में उनके खाने पीने की व्यवस्था करवाई हम लोगों ने। कुछ चूड़ा, कुछ गुड़, पानी वानी की व्यवस्था कराई, रहने का जुगाड़ लगाया। हालांकि हालांकि वो लोग रुके नहीं वहाँ पे, वो लोग निकल गए, वहाँ से चले गए। लेकिन अगले ही दिन अखबार में एक न्यूज़ मिली, हालांकि मैंने बाद में पढ़ा, किसी ने भेजा मुझे, तो उसमें से जो दो महिला थी, दो महिलाएं उसमें से बेहोश हो गई थी रास्ते में चलते हुए। तो वहाँ के जो लोकल विधायक थे, उन्होंने किसी तरह व्यवस्था करके, गाड़ियों की व्यवस्था करके फिर उनको झारखंड के बॉर्डर तक पहुँचाया। तो ये तो सिर्फ मेरे सामने एक वाकया हुआ था। ऐसे हजारों वाकया हैं जो लगातार हो रहे हैं, जो आप अगर बाकी लोगों से सुनेंगे तो वो बताएंगे इसके बारे में। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हकीकत हैं, जिससे जो लेबर हैं, जो लोग हैं, वो लगातार उसको फेस कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग एक तो लेबर की बात करें, दूसरा किसान जो हैं वो आज के डेट में सबसे ज़्यादा शोषित हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और सच बात यह है कि किसानों की वजह से ही अगर हम लोग इस महामारी को झेल पाने में अभी तक सक्षम हुए हैं, तो उसकी मुख्य वजह किसान ही है। आप लोगों ने कुछ आर्टिकल पढ़ा होगा कि यूएस में भी बहुत ज़्यादा कई कई जगहों पे भुखमरी की समस्या है, बंद पैकेट्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ वहाँ भी आ रही हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम लोगों को अपने किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी बदौलत आज इंडिया में कम से कम भुखमरी की समस्या उतनी नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि गाँव में भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही गरीब थे, लेकिन वो किसी तरह बार्टर सिस्टम के आधार पे या खेतों में काम करके अपना काम चला लेते थे। किसानों के साथ समस्या क्या होती है कि वो जो फसल उगाते हैं, और फसल जब हार्वेस्ट होता है, फसल जब कट जाता है, उसके बाद वो उसको वहीं से बेच देते हैं। जो भी महाजन है या जो भी बिचौलिया है, मिडिल मैन है, वो आके वहाँ से अनाज उठा के ले जाता है, उनको पैसे देता है ताकि वो फिर से अपने अगले सीजन के लिए जो उनका फर्टिलाइजर है, जो सीड्स है, उसकी परचेजिंग करते हैं। क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से जो फार्मिंग था वो भी अधिकांशतः बंद था, किसान जा नहीं पा रहे थे, हार्वेस्टर उनको नहीं मिल रहा था, लेबर नहीं मिल रहे थे ताकि वो अपने फसल की कटाई करें। तो गेहूं की फसल इस बार हुई है यहाँ पे, हम लोग ऐसे जाके पता लगा रहे थे, पता चला कि उनके फसल का खरीदार कोई नहीं है। किसानों ने फसल तो कटवा ली है, लेकिन उस फसल को आगे तक पहुँचाने का कोई साधन नहीं है, और बीच में जो मिडिल मैन होता था, जो परचेज करता था, वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है, वो आने में असमर्थ है। इसमें हम लोगों ने एक उपाय किया, ये सारे स्टेट में हुआ, कि क्यों ना हम लोग डायरेक्ट जो अनाज है जिसे हम लोगों को दे रहे हैं, वो हम लोग किसानों से परचेज करें। तो मैक्सिमम किसानों से हम लोगों ने अभी अनाज परचेज किया है, उनसे जो उनकी कीमत है, जितना उन्होंने बताया है उसके आधार पे, और इस वजह से किसानों को थोड़ी बहुत सहूलियत हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जुड़ा एक वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल का ही ये वाकया है। हम लोग राशन के साथ में जो भी लोग हैं, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको सब्जियाँ भी दे रहे हैं। सब्जियाँ देने के पीछे का सिर्फ मकसद ये था कि जैसे किसानों का जो अनाज है वो नहीं बिक रहा था, वैसे ही सब्जियाँ भी उनकी नहीं बिक रही थी, क्योंकि सब्जियों के लिए कोई मार्केट नहीं था, लोकल मार्केट ऐसे ही लॉकडाउन में बंद था। तो बहुत सारे किसान जो माना टमाटर की खेती करते हैं, हरी मिर्च की खेती करते हैं, उनका जो फसल है वो खेतों में ही था। ऐसे ही हम लोग एक खेत में गए, एक किसान थे वहाँ पे, उन्होंने हरी मिर्च की खेती की थी। हमने पूछा, दादा आप ये कैसे देंगे, हरी मिर्च आप कैसे देंगे? तो उन्होंने कहा कि हम 4 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको ये देंगे। ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि 4 रुपये किलो हरी मिर्च, कभी भी ऐसा तो हम लोगों ने सुना नहीं था कि 4 रुपये केजी के हिसाब से हरी मिर्च मिलेगी। हमने पूछा, दादा ये क्या आप इतना हमेशा ऐसे ही बेचते हैं या अभी कुछ? बोले नहीं बेटा, हम तो नॉर्मल दिनों में 12 रुपये के हिसाब से बेचते हैं, क्योंकि अभी हमारी फसल बिक नहीं रही है, तो हमें लगता है कि फसल फेंकने से अच्छा है कि कुछ तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप बेटा पहले खरीदार हो, जो आके हमसे पूछ रहे हो कि हम आपकी फसल खरीदने आए हैं। तो हमने कहा कि दादा आप ये बताएं कि इसमें आपकी कितनी लागत लगी है और हम आपको कितना पैसा दें
कि आपकी लागत भी निकल जाए और आपको थोड़ा सा मुनाफा भी हो जाए। उन्होंने कहा बेटा अगर आप हमें 8 रुपया देंगे तो मेरी लागत भी निकल जाएगी और मुझे थोड़ा सा मुनाफा भी होगा, मुझे खुशी होगी। हम लोगों ने भी उनको 8 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया। उसके बाद उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने वाली थी। एक मतलब एक सेटिस्फेक्शन था उनके चेहरे पे कि चलो भाई कोई तो आया जो हमारी फसल को। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हुए हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको आपको मतलब आपके दिल को कुचोटती है, लगता है कि यार ये आपको मोटिवेट भी करती है, चलो हमने हमने कुछ तो किया इनके लिए, हमारा कुछ तो योगदान रहा। ऐसे बहुत सारे किस्से फिल्म में आपको देखने को मिलता है। दूसरा एक ये उसमें एक क्वेश्चन भी था कि कोई ऐसा वाकया जिसमें लोग मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को। हमने देखा है कि हमारे मित्र हैं वो बता रहे थे कि जैसे जो लोग आ रहे हैं रोड पे सफ़र कर रहे हैं, उनको वो लोग कुछ खाना वाना खाने की पोटली बना के, पूरी सब्जी बना के ऐसे दे रहे हैं। सिर्फ वो नहीं दे रहे बल्कि 3-4 किलोमीटर पे जो अलग अलग गांव हैं वहाँ के लोग भी उन लोगों को मदद कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया कि ये एक साइकिल से करीब 10-12 लोग आ रहे थे। तो उनसे उनको उन्होंने रुकवाया, बोला कि भाई ये आप खाने का पैकेट ले लीजिए। तो उसमें से एक आदमी बोला, उसमें से बाकी लोग रुके नहीं, चलते रहे। एक आदमी रुका और बोला कि भैया हमने पिछले गांव में ही हमने खाने का सामान ले लिया है और हमें उम्मीद है कि हमें आगे भी मिल जाएगा। तो ये जो आप दे रहे हैं ये आप जिसको नहीं मिला होगा वो आप उसको दे दें। आप सोचिए मतलब उस इंसान के मन में जो इतना लंबा सफर कर करके आ रहा है, साइकिल से चल रहा है, उसके दिल में भी ये उम्मीद है कि हमें खाना आगे मिल जाएगा। और वो अपना खाना जो उसको मिल रहा था उसने कहा कि आप किसी और को दे दीजिए। सोचिए कितनी बड़ी बात उसने कही। तो ऐसे ही लाइफ चल रहा है सब लोगों की। जी धन्यवाद। अर्पिता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे अभी रिसेंटली एक दो इंसिडेंट हुआ है। एक गांव से एक बच्ची क्लास 5 या 6 में पढ़ती है। शी बिलोंग्स टू टॉट कम्युनिटी। दिस इज अ काइंड ऑफ इग्नोर्ड कम्युनिटी। वो लोग जो है आसाम से माइग्रेटेड है नॉर्थ बंगाल में। बेसिकली दे आर रिफ्यूजी। उनके पास गवर्नमेंट का कुछ भी कागज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर अनएबल टू हैव राशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट पीडीएस से। तो बच्ची ने क्या किया, हम लोग को एक चिरकुट में मैसेज भेजा व्हाट्सएप करके। हमारे जो लोकल पार्टनर है वहाँ पे गए थे। उनको जब मीडिया उस कम्युनिटी को बहुत कवर कर रहा था, हमने न्यूज़पेपर में देखा, तो हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे गए थे। तो उस बच्ची ने थ्रू अवर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन मुझे मैसेज भेजा कि हमने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया, क्योंकि हमारे वहाँ पे छोटा छोटा हैमलेट होते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। दैट इज कॉल्ड टोटली डुअर्स एरिया। बहुत रिच, मतलब जो लोकल टाउन से बहुत 20-25 किलोमीटर दूर पे गांव पे है, उनके पास। और मैक्सिमम जो फैमिली मेंबर्स वो लोग डेली वेजर्स है, जो शहर में आते हैं, टाउन में दिन मजदूरी करते हैं, फिर गांव वापस जाते हैं एंड ऑफ द डे। ड्यू टू द लॉकडाउन उनके पास ऐसा कुछ साधन है ही नहीं कि वो अपनी फैमिली को रन करे। तो उन्होंने क्या किया, पूरा फैमिली मेंबर का लिस्ट हमें भेजा कि हमें 4-5 दिन का खाना नहीं है, हम बहुत मुश्किल से फॉरेस्ट से कुछ लाके खा रहे हैं, हमें किसी तरह चावल मिल जाए। तो हमने वहाँ पे सामान पहुंचाया। तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी है जिनके पास शायद, क्योंकि हर डिजास्टर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लोग जो असली जिनको जरूरत हमें उनको सामान नहीं पहुंचा पाते कभी कभी। तो हम लोग ये पूरे चीज में कोशिश करें कि जो सही है उन्हीं को मतलब सामान पहुंचाए। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और एक जो चीज है, कैसे बहुत सारे कम्युनिटी है जैसे मैट बनाते थे, बहुत सारे उनका ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट वर्क है जो लोकल टाउन में आके सेल करते, जो अभी सेल नहीं हो रहा है, जो अभी मेरा जो सीनियर कलीग है शिव जी ने बोला। तो वो सारी चीजें भी हम लोग लोकली परचेस कर रहे हैं, करके हम कम्युनिटी को दे रहे हैं कि वो डिग्निटी उनका मेंटेन रहे, टू जेनरेट लोकल एम्प्लॉयमेंट। ऐसे भी। हाँ जी, धन्यवाद। हमको जो प्रश्न पूछने थे हमने पूछे। अगर आपको हमसे कोई प्रश्न है जो अगर आप हमको कोई दूसरा उपाय बता, जैसे हम मदद कर सके, हम ज़रूर मदद करना चाहेंगे। और अगर आपको कुछ कहना हो तो प्लीज़, अगर कोई प्रश्न हो। बहुत अच्छा एफर्ट है आप लोगों का। ये जो आप लोगों ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ये काफ़ी मोटिवेटिंग है। बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ख़ासतौर पे ये कि ये जो एज है आप लोगों का, और इस एज में इस चीज़ को सोचना
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। Thank you. Exactly. धन्यवाद, थैंक यू। तो और सहायक और अगर आप लोगों को कुछ मतलब जानकारी और चाहिए, एक रिपोर्ट हमने भेजा है आपको, आप उसमें डिटेल और हो सकता है। और इसको यहाँ तक मत रोके, बिकॉज स्कूल एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। हमारा भी एक स्कूल टू स्कूल इनिशिएटिव है जहाँ पे हम स्कूल जो भी सामान है वो हम देते हैं बच्चों से, देन वी रीच आउट टू द रूरल एरियाज मेंटेनिंग डिग्निटी, मतलब ऐसे फ्री में नहीं देते। तो जब क्योंकि हमें लगता है स्कूल अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। सो एक्चुअली जो सबने बताया अभी, जो रूरल स्टोरीज है वो बेसिकली अभी हम सर्वाइवल पे ही काम कर रहे हैं कि खाना ले लो ताकि उनकी डेथ ना हो, वो खाने वो बच जाए। सो आई थिंक अभी रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं सर्वाइवल पे काम कर रहे हैं, बट आगे भी मतलब रिहेबिलिटेशन, लाइवलीहुड, इस पे काम करेगा। सो मतलब वो एक जगह रुकेगा नहीं, उसको आगे तक लेके जाएगा। यही हमारा काम भी है। अगर आप देखोगे कभी भी हम डिजास्टर में सिर्फ मतलब 1 महीने 2 महीने तक डिजास्टर जो होता है उस पर रुकते नहीं है। हम 6 months 1 year तक लंबा काम करते हैं ऑन इन रिहेबिलिटेशन वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, इस पे काम करते हैं। सो आई थिंक कीप अप द स्पिरिट्स, मेरे को बस इतना ही बोलना था। राइट, और ये हमें लगता है कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद जब ये लॉकडाउन खुलेगा, अगर आपके स्कूल में अगर गूंज का पता नहीं हुआ है, शायद अगर नहीं भी हुआ, इफ वी कैन ऑर्गेनाइज वन सेशन इन योर स्कूल, हमारा जो एस्ट्रेज इनिशिएटिव है ओवरऑल गूंज का अगर हम सेशन वहाँ पे कर पाते हैं, अगर स्कूल में कोई भी कलेक्शन कैंप ऑर्गेनाइज कर पाते हैं आफ्टर लॉकडाउन, तो शायद और भी जो आप जैसे और भी स्टूडेंट्स वो मोटिवेटेड हो सकते हैं, they can come forward, they can do something, because we believe कि हम सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज है, और जो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए फॉर द सोसाइटी, हम जहाँ पे भी जैसे है। डेफिनेटली। नो, पर्सनली हम जितना मदद कर सके हम करेंगे, जितना टाइम के लिए कर सके हम वो भी करेंगे। और अगर जब स्कूल खुले, अगर लगता नहीं कि अगस्त सितंबर के पहले स्कूल्स खुलेंगे, पर जब खुले हम ज़रूर सेशन कर सकते हैं स्कूल में। हमारे स्कूल के जो हेड्स हैं वो भी बहुत खुश होंगे ये सुन के। तो हमारी तरफ से बस हमको इतना आपसे मदद चाहिए थी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंटरव्यू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और ये बहुत मदद का काम है हमारे लिए। और अगर आगे हम कुछ कर सके हमको प्लीज़ बताइए, हम ज़रूर जो भी कर सके मदद करने के लिए हम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। Arav, Vasav, I want to add something here. Yeah, मैंने ईशा को एक मैसेज सेंड किया था, and that was about the webinar that is happening tomorrow. Our founder, Mr. Anshu Gupta, he is going to address that webinar. ठीक है? तो उसको अगर आप अपने टीचर्स में थोड़ा वो शेयर कर सके मैसेज, और उनको कन्विंस कर सके कि कोई अटेंड करे, और अगर कोई उनमें से नहीं अटेंड कर पाता है तो अगर आप लोग में से कोई अटेंड कर पाएगा तो दैट विल बी ग्रेट। एटलीस्ट यू कैन टेक दैट मैसेज फॉरवर्ड, like whatever our founder has to say. Okay. And this is absolutely related to school and their role during this crisis and after this phase. Oh, thank you. We'll try to get the message across to our teachers. And Definitely Thank you. contact our school. We'll contact our teachers. We'll let them know how we Yeah, can help. sure. If they cannot, Absolutely. we'll definitely attend it. Sure. So I don't think anything else. Thank you so much for your time, and this has been a great help to us. Thank you. yeah, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, all of you. Bye. Dhanyawad. Bye, thank you. Bye.